होता होगा कुछ हमारे जीवन के साथ, फिर भी खुदा हमें इन वचनों के अधीन लेकर आ और हमें आज्ञा पालन बढ़ा हमारे जीवन में, ताकि हम, तो कैसा भला परमेश्वर है, तो कैसे हमें आनंद के साथ रखता है, कैसा तू कौन से रास्तों से हमारे मन की इच्छाओं को पूरा करता है, हमें जो मन चाहता है वो सब कुछ तो दिलाता है तेरे धार्मिकता के, तेरे न्याय के और तेरे प्रेम के रास्ते से। ऐसा अनुभव हमारे जीवन में और ज़्यादा बढ़ने के लिए, बिना मतलब के भी हमको आज्ञा पालन तेरे वचनों का करने के लिए पिता हमारे अंदर आदत बना। पवित्र आत्मा हमको ये नए आदत से भर दे आज, नासरी यीशु के नाम से विनती करते हैं, सुन और कबूल कर मेरे पिता। आमीन आमीन आमीन। 1 Corinthians 10 chapter 14 verse से हम आगे पढ़ते जा रहे हैं। Wherefore, my dearly beloved, flee from idolatry. I speak as to wise men. Judge ye what I say. The cup of a blessing which we bless, is it not the communion of the blood of Christ? The bread which we break, is it not the communion of the body of Christ? For we being many are one bread and one body, for we are all partakers of that one bread. Behold, Israel after the flesh are not they which eat of the sacrifices, partakers of the altar. What say I then? That the idol is anything, or that which is offered in sacrifice to idols is anything? But I say that the things which the Gentiles sacrifice, they sacrifice to devils and not to God. And I would not that ye should have fellowship with devils. Ye cannot drink the cup of the Lord and the cup of devils. Ye cannot be partakers of the Lord's table and of the table of devils. Do we provoke the Lord to jealousy? Are we stronger than He? All things are lawful for me, but all things are not expedient. All things are lawful for me, but all things edify not. Let no man seek his own, but every man another's wealth. Whatsoever is sold in the shambles, they that eat, asking no question for conscience sake. For the earth is the Lord's, and the fullness thereof. If any of them that believe not bid you to a feast, and ye be disposed to go, whatsoever is set before you, eat, asking no question for conscience sake. But if any man say unto you, this is offered in sacrifices unto idols, eat not for his sake that should eat, and for conscience sake, for the earth is the Lord's, and the fullness thereof. Conscience, I say, not thine own, but of the other. For why is my liberty judged of another man's conscience? For if I by grace be a partaker, why am I evil spoken of? Why am I evil spoken of for that for which I give thanks? और एक बार पढ़ेंगे वचन 30 को हम और एक बार पढ़ेंगे. For if I by grace be a partaker, why am I evil spoken of for that for which I give thanks? Whether therefore ye eat or drink, or whatsoever you do, do all to the glory of God. Give none offense neither to the Jews, nor to the Gentiles, nor to the church of God, even as I please all men in all things, not seeking mine own profit, but the profit of many, that they may be saved. चैप्टर 11 में से हम सिर्फ फर्स्ट वर्स तक ही पढ़ने जा रहे हैं. इंट्रोडक्शन. ही exalted them and forbiddeth men to pray or prophesy with their heads covered, and women with their heads uncovered, of the Lord's Supper. First verse. Be ye followers of me, even
as I also am of Christ। पहले कुरिन्थियों की पत्री 10 अध्याय 14 वचन से पढ़ते जाएंगे। 11 वचन के सिर्फ पहले वचन तक पढ़ना है आज का रीडिंग। BSI बाइबल में से पढ़ रहे पहले कुरिन्थियों की पत्री 10 अध्याय 14 वचन से आगे। मूर्ति पूजा के विरुद्ध चेतावनी। इस कारण हे मेरे प्रियो, मूर्ति पूजा से बचे रहो। मैं बुद्धिमान जानकर तुमसे कहता हूँ, जो मैं कहता हूँ उसे तुम परखो। वह धन्यवाद का कटोरा जिस पर हम धन्यवाद करते हैं, क्या मसीह के लहू की सहभागिता नहीं? वह रोटी जिसे हम तोड़ते हैं, क्या वह मसीह की देह की सहभागिता नहीं? इसलिए कि एक ही रोटी है तो हम भी जो बहुत है एक देह है, क्योंकि हम सब उसी एक रोटी में भागी होते हैं। जो शरीर के भाव से इस्राएली है उनको देखो, क्या बलिदानों के खाने वाले वेदी के सहभागी नहीं? फिर मैं क्या कहता हूँ? क्या यह कि मूर्ति पर चढ़ाया गया बलिदान कुछ है या मूर्ति कुछ है? नहीं, वरन यह कि अन्य जाति जो बलिदान करते हैं वे परमेश्वर के लिए नहीं परंतु दुष्ट आत्माओं के लिए बलिदान करते हैं। और मैं नहीं चाहता कि तुम दुष्ट आत्माओं के सहभागी हो। तुम प्रभु के कटोरे और दुष्ट आत्माओं के कटोरे दोनों में से नहीं पी सकते। तुम प्रभु की मेज और दुष्ट आत्माओं की मेज दोनों के साझी नहीं हो सकते। क्या हम प्रभु को क्रोध दिलाते हैं? क्या हम उससे शक्तिमान हैं? सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए। 23 वचन से आगे। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो है, परंतु सब लाभ की नहीं। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो है, परंतु सब वस्तुओं से उन्नति नहीं। कोई अपनी ही भलाई को नहीं वरन दूसरों की भलाई को ढूंढे। जो कुछ कसाईयों के यहाँ बिकता है वह खाओ और विवेक के कारण कुछ न पूछो, क्योंकि पृथ्वी और उसकी भरपूरी प्रभु की है। यदि अविश्वासियों में से कोई तुम्हें नेवता दे और तुम जाना चाहो, तो जो कुछ तुम्हारे सामने रखा जाए वही खाओ और विवेक के कारण कुछ न पूछो। परंतु यदि कोई तुमसे कहे, यह तो मूर्ति को बलि की हुई वस्तु है, तो उसी बताने वाले के कारण और विवेक के कारण न खाओ। मेरा मतलब तेरा विवेक नहीं, परंतु उस दूसरे का। भला मेरी स्वतंत्रता दूसरे के विचार से क्यों परखी जाए? यदि मैं धन्यवाद करके साझी होता हूँ, तो जिस पर मैं धन्यवाद करता हूँ उसके कारण मेरी बदनामी क्यों होती है? इसलिए तुम चाहे खाओ, चाहे पियो, चाहे जो कुछ करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। तुम न यहूदियों न यूनानियों और न परमेश्वर की कलीसिया के लिए ठोकर के कारण बनो। जैसा मैं भी सब बातों में सबको प्रसन्न रखता हूँ और अपना नहीं परंतु बहुतों का लाभ ढूंढता हूँ कि वे उद्धार पाए। थैंक यू जीसस। 11 अध्याय में से पहले वचन को ही सिर्फ पढ़ेंगे। तो मेरी सी चाल चलो जैसा मैं मसीह की सी चाल चलता हूँ। अद्भुत चट्टान धर्मी उसमें तो